उपध्यायाणं नमो लोये सवसा आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। છેલ્લા બે સ્વાધ્યાયોમાં આપણે સપ્ત વ્યસન અંગે ખાસ અભ્યાસ સ્વાધ્યાય અત્રે કર્યો. આજે પણ આ વિષયને જ આગળ આપણે વધારીએ અને આજે આ વિષય પૂરો પણ થઈ જશે. એટલે આવતીકાલથી આપણે પરમાનંદ સ્તોત્ર ફરીથી વ્યવસ્થિત રીતે આપણે શરૂ કરીશું. એમાં 12-15 શ્લોક બાકી છે, એનો સ્વાધ્યાય આપણે લેશું. જો એક આત્માર્થીનું જીવન સદાચાર અને સંયમમય હોવો જોઈએ અને સંયમી અને સદાચારી જ ખરેખર તત્વજ્ઞાનને માટે પાત્ર ગણાય છે. ગઈકાલે આપણે શ્રીમદજીની વાત કરી હતી. કશાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ ભવે ખેદ પ્રાણી દયા ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. જેના જીવનમાં આવા ગુણો હોય છે, કશાયોની તીવ્રતા ન હોય, મંદતા હોય છે, બરોબર, અન્ય અનેક ગુણો, કશાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, કેવળ મુક્તિની કામના હો, મોક્ષની અભિલાષા હો, ભાવ પ્રત્યે ખેદની લાગણી હો, બરાબર, પ્રાણી દયા કરુણા ભાવ હો, છ કાય જીવો પ્રત્યે એકેન્દ્રી, બે ઇન્દ્રી, ત્રણ ઇન્દ્રી, દરેક પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે કરુણાના દયાના ભાવ હોય. આજે કેટલો સરસ ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં દાખલો આવ્યો હતો. ખરેખર ગઈકાલ સવારે જે ગુરુદેવશ્રીએ વાત કરી, રાયચંદભાઈ ગાંધી જ્યાં મણ ના કેરીઓ ત્યાં પડેલી હોય ઘરમાં અને 50 માણસ જમતા હોય અને ગુરુદેવશ્રીને જયારે ઓરવા માટે ત્યાં જવાનું થાય તો ગુરુદેવશ્રી સામેથી પૂછે કે આ રસમાં ગુઠલી તો નથી ને, અંદરની ગુઠલી એમાં એકેન્દ્રી જેવું હોય, અમે રસ ન પીએ. બોલો આ કેવો સદાચાર કહેવાય ગુરુદેવશ્રીનો. હા, આપણને ખરેખર હું તમને પૂછું છું ભાઈ પ્રકાશભાઈ, આપણને ખ્યાલ છે એ ગુઠલી એકેન્દ્રી જીવ છે, એવો રસ ન લેવાય? અને એ વિવેક આપણા ગુરુદેવશ્રીના જીવનમાં. હા, આ કેટલી ગજબની વાત છે, આ ચરણાન યોગની, ખાન પાનની, વિવેકની વાત. ટૂંકમાં એટલો જ એ નિષ્પાપ અને નિર્વ્યસની જીવન હોવો જોઈએ, એમાં જરાય ચલાવી લેવાની વાત નથી. આળસ પ્રમાદના ભોગે, સ્વચ્છંદતાના ભોગે, શિથિલતાના ભોગે જાત જાતના બધા પ્રમાદના દોષો કરીએ, હા, અને એમ માની કે અમને આત્માનું જ્ઞાન થશે, એવું નહીં. શીલનું પાલન, સદાચારનું પાલન, સંયમનું પાલન, આ બધું જીવનમાં હોવું જ જોઈએ, બરોબર. તો આના જ પ્રકરણમાં આપણે આ નિર્વ્યસની જીવન અને નિષ્પાપ જીવન એની વાત આપણે કરીએ છીએ. ઘણી બધી ચર્ચા આપણે કરી છે. આજે આપણે આગળ વધીએ છીએ અને આજે આ વિષય આપણે લગભગ પૂરો જ કરીએ આપણે, કેમ કે 5 વ્યસનો સંબંધીનો વિષય બાકી છે. આજે એટલો વિષય આપણે થોડીક ઝડપ રાખીને પૂરું કરીએ છીએ. સૌથી પહેલા તમારી પાસે જોજો, આ હું હમણાં સપ્ત વ્યસન સંબંધી જે ડોક્યુમેન્ટ છે આપણી પાસે એ અત્યારે શેર કરું છું. એક વાત તમે ધ્યાનથી જોજો, બરાબર. 7 વ્યસન ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી.
जे चोरी छुपे था। हाँ, माता पिता के डर से, बड़ों के डर से जो चोरी चोरी चुपके चुपके मतलब लुका छिपी के माध्यम से गलत काम जब जीव करता है, मतलब दुनियादारी की लिहाज रख करके, बड़ों का डर रख करके, अथवा बड़ों के प्रति मान सम्मान। मैंने एक और बात भी कही थी, धर्म का भय, जिसके दिलो दिमाग में धर्म का भय है, वह कभी पाप नहीं करेगा, पाप से वो लौटेगा पीछे, अरे रे मुझे ये गलत काम नहीं करना चाहिए, बराबर। लेकिन व्यसन किसे कहते हैं? जो खुलेआम किए जाते, न माता पिता का डर, न धर्म का डर, न गुरुजनों का कोई विनय विवेक, कोई लिहाज नहीं, बिल्कुल मतलब समझो अतिचार नहीं, अनाचार के रूप में सप्त व्यसनों का पोषण, चाहे वो चोरी करने का हो, जुगार खेलने का हो, मतलब जितना जो भी हो सकता है अपने जीवन में। हाँ, वैसे तो गिनने में ये 7 हैं, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, ये जो लिखा है ये तो गिनने की बातें हैं। आंख खेटक, शिकार करना, तो पहला वह जमाना था जब शिकार किस बात का किया जाता था? पशुओं का, हिरण का शिकार, हाथियों का शिकार, पंखियों का शिकार किया जाता था। अरब कंट्री में भी देखो आप, उड़ते पंछी को मारने वाला बहुत बड़ा निशानेबाज माना जाता है। ऐसे ऐसे पागलपन है दुनिया में, शौक मौज शौक के नाम से क्या कौन कौन से पाप करते हैं और किस प्रकार से कुगति में जाने की तैयारी करते हैं, जीवों को पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ सप्त व्यसन के संदर्भ में हम आप लोगों ने ये विषय बहुत सुंदर लिया था। जल्दी जल्दी मैं आपको विषय को रिपीट करते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सप्त व्यसन, इसमें व्यवहार व्यसन और निश्चय व्यसन की बात हम आप लोगों ने की थी। बुरी आदत वह व्यसन कहलाता है जो व्यवहार व्यसन है। निश्चय से क्या है? मोह राग द्वेष आदि के जो परिणाम है, कषाय के परिणाम है, निश्चय से व्यसन है जो अपने आत्म स्वभाव का घात कर। व्यसन से क्या नुकसान होता है, खोटी आदतों से क्या नुकसान होता है? तो कहते हैं कि जीव में आकुलता पैदा हुआ करती, निरंतर मन अस्थिर रहता है, दुराचारी बनता है। अरे, जब किसान अच्छी फसल यदि लेना चाहे तो खेत की मिट्टी को भी वो मुलायम होने देता है, एक दो बारिश आने के बाद बीज बोता है, तब जा करके अच्छी फसल उसके नसीब में होती है। ऐसे ही भाई, चरणान योग की भाव विशुद्धि पूर्वक भूमिका जब बनती है, तब जा करके भेद विज्ञान का फसल उसमें से निकलता है। इसलिए खान पान आदि में विवेक और सदाचार संयम में जीवन हमारा होना चाहिए। ये इस बात से हम आप लोगों को संदेश मिलता है। फिर द्रव्य व्यसन और भाव व्यसन के भी भेद किए। इनमें तो नाम ही दिए हैं जो नाटक समय सार के अंतर्गत आते हैं। सबके नाम है: जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, दारू पीना, वेश्यागमन करना, बोलो शिकार करना, परस्त्री सेवन करना और चोरी करना। अरे, जुआ खेलना ये तो द्रव्य जुआ, लेकिन खेलने के भाव, ये भाव जुआ। यहाँ तो और गहरी बात है, शुभ में जीत, अशुभ में हार। थोड़ा सा पुण्य का उदय आता है तो हम हंसने लगते हैं, पाप का उदय आता है तो बिल्कुल हताश और निराश हो जाते हैं। ये भी जुआ है, ये भी भाव जुआ है ये, बराबर। उसी प्रकार मांस खाना, मांस खाने में भी बहुत बढ़िया बताया था कि देह में अपनेपन की बुद्धि करना, शरीर में ममता का करना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। इस शरीर के प्रति ममता, अनहद प्रतिमा, अनहद ममता का होना, मोह का होना, भाई ये भी मांस भक्षण है। ये भी देह के प्रति, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, ये मांस भक्षण है। हाँ, ये बिल्कुल अंदर का भाव मांस भक्षण है, देह के प्रति अपनापन, देहाध्यास। ज्ञानी धर्मात्माओं ने इसके लिए देहाध्यास कहा, बराबर। तो इस क्रम में हम आप लोग जुआ और मांस खाना, इसके ऊपर हम आप लोगों ने सारी चर्चा की थी। देखिए,
पापोदय में विषाद मनाना, पुण्योदय में हर्ष मनाना, दुखी होना, सुखी होना, ये सब क्या है? थोड़ा सा अपना बेटा कमाने लगता है, हाँ, बहुत बड़ा रेपुटेशन बनता है, अपना हो, अपने बच्चों का हो, संतान का हो, चाहे वो पैसों से लेकर के हो, सत्ता से लेकर के हो, ये सब पुण्योदय। असल में ये पुण्योदय कहाँ, ये पापानुबंधी पुण्योदय है। क्योंकि ऐसा पुण्य का उदय, जिस पुण्य के उदय में जीव को मान कषाय बढ़े, जिस जीव को लोभ कषाय बढ़े, जिस जीव को मान अभिमान बढ़े, कषाय की वृत्ति का पोषण हो, वह सच में पुण्य का उदय है ही कहाँ? वो तो पापानुबंधी पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय तो उनका है जिन्हें भगवान की वाणी सुनने मिलती है, जिन्हें आत्मा और परमात्मा की बात सुनने मिलती है। पुण्य का उदय तो सच में उनका है। बात समझ में आ रही है? तो संयोग जन्य पुण्य के उदय में स्त्री, पुत्र, परिवार, संयोग, धन, वैभव, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी वाड़ी, जमीन जायदाद, ये सब बढ़ता है। ये पापानुबंधी पुण्य के उदय से होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उसमें हर्षित होना, हर्ष मनाना, ये भाव जुआ है। ऐसे ही पाप के उदय में शरीर में रोगादिक आ जावे। देखिए पिछले 6, 7, 8 महीने से पूरा रोग का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। अब हताश हताश हताश, घर में डिप्रेशन में आ जाते हैं, घर में अच्छा लगता नहीं है। ये सब क्या है? ये पापोदय में विषाद मनाने का है। सारी दुनिया पागल है। हाँ, जैसे सामायिक पाठ में जो बात कही है बहुत सुंदर, आप लोग जानते हैं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, ये सभी है विश्ववासना उपादेय निज शुद्धात्म। अरे उपादेय तो मेरा भगवान आत्मा है। इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में जो मैं ये हर्ष और विषाद मनाता हूँ, आर्त और रौद्र ध्यान करता हूँ, ये भाव जुआ है और कुछ नहीं। कहां से कहां लेके गए विचार करो। हाँ, और हर संसारी जीव कम से कम 2 ध्यान तो करता ही है, और उन ध्यानों का नाम है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तो पाप के उदय में दुखी होना, ये आर्त ध्यान है। पुण्य के उदय में सुखी होना, ये रौद्र ध्यान है। फिर उसमें भी 4 भेद है। हाँ? विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान, 5 इंद्रिय के विषय को भोगे और प्रसन्न 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 हो जाए। बंगला देख देख करके पाप कमावे। हाँ? धंधा व्यापार का उत्कर्ष देख देख करके पाप कमावे। क्या है ये पुण्योदय में हर्षित होना, ये भाव जुआ नहीं है तो और क्या है? हाँ? आज सुबह मैंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि देखते ही देखते 4x4 वाली जो दुकान होती है, 10x10 वाली जो दुकान होती है, 2, 4, 6 साल में तो दुकान बढ़ जाती है। हाँ? पूरा आजू बाजू के 2, 3 दुकान हम खरीद लेते हैं, बहुत बड़ी दुकान, बहुत बड़ी दुकान। तो फैलने का भी ढंग कैसा, ऐसा भी फैलते हैं आजू बाजू में, और नीचे भी फैलते हैं, ऊपर भी फैलते हैं। नीचे सेलर बनाएंगे, ऊपर और 3, 4, 5 मंजिल बनाएंगे दुकान, और चारों तरफ फिर फैलाएंगे पूरी की पूरी मार्केट, पूरा अपार्टमेंट मेरा। अरे देखो आप, ये फैलाव जो है, ये पुण्य का फैलाव नहीं है। ज्ञानी कहते हैं ये तेरे मोह का फैलाव है। मैंने इस बात को बहुत जोरदार ढंग से आज प्रातः काल कही थी। क्या कहा मैंने? ये दुकान बढ़ी, ये तेरा पुण्य नहीं बढ़ा भाई साहब, ये तेरी पवित्रता नहीं बढ़ी, ये तो तेरा मोह बढ़ा। कहा था मैंने आज सुबह। हाँ, जो भी लोग थे आप जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ, ये मोह का विस्तार है। कहाँ लिखा है ऐसे? हाँ, संसार नु वधु अरे नर देहने जीती जाऊ, ऐसा लिखा है। हाँ, संसार नु वधु अरे नर देह ने हारी जऊ। तो संसार नु वधु એટલે શું? ધંધો, વ્યાપાર, માન પાન બધું આવ્યું કે નહીં એમાં? હા, તો ધંધો વધે છે,
એનો અર્થ એમ નહીં પુણ્ય વધે છે, પુણ્ય તો તારો ઘટે છે અને પાપ વધે છે, મોહનો વધારો છે। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये मोह में बढ़ावा है, ये मोह में बढ़ोतरी है, ये मोह कषाय का विस्तार है, ये कषाय का विस्तार है। बात समझ में आ रही भाई? हाँ, गुरुदेव श्री बंबई के सेठ के वहां जब गए, हाँ, शांताबेन के बनेवी के वहां अपने बंबई में भोजन करने के लिए गए, लाल जाजम, हाँ, लाल जाजम पाथरेलू। फिर गुरुदेव श्री पूरा देखा, गुरुदेव श्री ने पूरा बंगला देखा, फिर क्या कहा अंत में गुरुदेव श्री ने, याद है? बोलो सूरत वाला बोलो, शू कीधु गुरुदेव श्री? भाई बधी बात साची, पण आमाथी निकळवू अघरू पड़से। हाँ, हम आप लोग तो उनको बुके लेके जाते हैं मान सम्मान के लिए। हाँ, गुरुदेव श्री ने क्या कहा? अरे इसमें से निकलना तुझे बड़ा मुश्किल होगा। बोलो, ऐसा है भाई, ज्ञानी को हमेशा उसमें पाप दिखता है, ज्ञानी को उसमें मोह का फैलाव दिखता है। ऐसा सोचना चाहिए भाई। अपने मोह की परीक्षा, अपने कषायों का विस्तार कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका ख्याल हमें होना चाहिए। ये सब पुण्य और पाप के उदय में, उदयाधीन स्थिति में जो कषाय का फैलाव है, ये भाव जुआ है। क्या है ये भाव जुआ है। बोलो मंजूर है सतीश कुमार? हाँ, बंगला बन गया, दुकान बन गया, पैसों का आना लेना देना हो रहा है, हाँ, लाख 2 लाख 4 6 लाख की कमाई हो रही है, हमें क्या लगता है? हमारा पुण्य का उदय है। ज्ञानी को क्या लगता है? हमेशा ज्ञानी की नजर से देखना। क्या कहा? ज्ञानी की नजरों से देखना। महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे महावीर स्वामी भगवान, आप हमारी नजरों में बसो। क्या मतलब है उसका? हम आपकी दृष्टि से संयोगों को देखना सीखे। हाँ, आपने संयोगों को कैसे देखा? पुद्गल के पिंड के रूप में देखा। और हम संयोगों को कैसा देखते हैं? हमारे गहने, हमारा पैसा, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा रेपुटेशन, हमारा प्राइड, हमारी प्रसिद्धि, ये हम आप लोगों की देखने की दृष्टि कैसी, और ज्ञानी की देखने की दृष्टि कैसी? हाँ, तो गुरुदेव श्री के साथ यदि मैं जाता ना आहार के लिए, भोजन के लिए, तो मैं उस सेठ जी से क्या पूछता मालूम? सेठ जी ये लाल जाजम कहां से लाए? बहुत बढ़िया है। ये हम आप लोग ये पूछते हैं। और आजकल की तारीख में मोबाइल से पहले फोटो निकालते उसका, आपड़े पण आવું લઈ આવું છે, हमें भी ऐसा चाहिए। देखो विषय भोगों के बारे में हम देख देख के सीखते हैं कि नहीं बताओ? ट्रेनिंग के लिए जाते हैं सतीश कुमार, वो जो घर में बहुत बड़ी टीवी लगाई है ना, वो लिविंग रूम में इतना बड़ा टीवी, कितना है? 60 इंच का है, 75 का है, कितना है बड़ा हो? बोलो कौन सी पाठशाला में आपने सीखा? गूगल में सर्च किया था लिविंग रूम कैसा होना चाहिए, सोफा कैसा होना चाहिए, फलाना कैसा होना चाहिए, ढिकना कैसा होना चाहिए। दूसरों के विषय भोगों की सामग्री को देख देख के हम सीखते हैं। विषय भोगों के बारे में जीव को सिखाना नहीं पड़ता है, बस एक नजर भर डाली, नागिन नागिन नागिन, वो आंखों में, नजरों में वो छाप पड़ जाती है। बस हमें भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, खामगांव वालों से मैं पूछता हूँ, जो बंगला बनाया है, बंगले का डिजाइन डिजाइन सब दिमाग में देख देख के चल रहा होगा कि नहीं? हाँ, विषय भोगों के बारे में जीव को कहना नहीं पड़ता है, सब देख देख के सीख जाते हैं। हाँ, लेकिन तत्व के मामले में, मतलब देखो भाव जुआ तो निरंतर चल ही रहा है। हाँ, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, चल ही रहा है कि नहीं? आप सोचो।
भाव जुआ का ही विस्तार है सारा। हाँ, भाव जुआ, भाव मांस भक्षण, यही तो चल रहा है। हाँ, मैं सुंदर, मैं बहुत बढ़िया दिखता हूँ, हाँ, मेरी बॉडी अच्छी, मेरी ताकत अच्छी, हाँ, मैं जोरदार खा सकता हूँ। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने हमारे हॉस्टल में ऐसे ऐसे पागल विद्यार्थियों को देखा है, पागल विद्यार्थियों, पागल कह रहा हूं मैं। जैसे हम हॉस्टल में रहते थे तो खाना खाने के लिए बैठते थे, देखो किसी को ख्याल हो तो मालूम कैसे, अब सेकंड थर्ड पंक्ति में खाना खाने के लिए बैठे रविवार के दिन खास, और दो मित्रों के बीच में कौन ज्यादा रोटी खाएगा गरम गरम, उसके बीच में शर्त लगी, और एक एक मित्र तो 35 40 40 रोटी खा जाए। और एक मेरा मित्र था ऋषभ, उसका नाम आदिनाथ, उसने 75 रोटी खाई, 75 रोटी। तीन लोक को ना जजु खाए, मिटे न भूख कणान लहाय। मैंने उसको कहा था, ये मेरा खास मित्र है, मैंने कहा ये नरक के संस्कार है, नरक के संस्कार। बोलो ये जुगार खेला कि नहीं बताओ? हाँ, ये मांस भक्षण है कि नहीं? मैं इतना खा सकता हूँ, उतना खा सकता हूँ। जैसे वो ब्राह्मणों में शर्त लगती है ना, लड्डू सबसे ज्यादा कौन खाएगा? हाँ, यहाँ सौराष्ट्र में वो अड़दिया खाने की शर्त लगती है, अड़दिया कौन खाएगा, 10 20। अरे पागलपन की बातें हैं। अनाहारक होने का मार्ग है, आहार में आवेग के साथ प्रवेशने का मार्ग नहीं। मतलब इसे विषय कषायों में शर्त लगानी, धर्म के मामले में शर्त नहीं लगाता है। क्या कह रहा हूं मैं, धर्म के मामले में शर्त नहीं लगाता मतलब, समझो मेरा साधर्मी मंदिर 7 बजे आता है, तो देख देख के मुझे क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए, ये यदि 7 बजे आता है तो मुझे 6:45 आना चाहिए, 6:30 आना चाहिए। अरे 5 बजे मैं सामायिक के लिए आ जाऊंगा, ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं? हाँ, दौड़ दौड़ करके 7:15 प्रवचन में आता है तो मुझे 8 बजे प्रवचन में आना चाहिए, प्रेरणा इसकी लेनी चाहिए कि नहीं बताओ? हाँ, धर्म के मामले में ये है, पंडित जी साहब का एक वाक्य है बहुत बढ़िया, रविंद्र भाई पंडित जी का एक वाक्य है, संयम में होड़ लगाओ, फैशन में होड़ मत लगाओ। क्या कहा? फैशन में होड़ मत लगाओ, संयम में होड़ लगाओ। हाँ, सामने वाला पड़ोसी सागर में 10 दिन के लिए यदि रात्रि भोजन का त्याग करता है तो मैं सारी जिंदगी रात्रि भोजन का त्याग करूंगा, ऐसे संयम में प्रतियोगिता। मैं तो कहता हूं सामने वाला क्षुल्लक हो जाए तो मेरी तैयारी होनी चाहिए ऐलक होने की। समझाणु काय, क्या कहा मैंने? सामने वाला यदि क्षुल्लक हो जाए तो मेरी भावना कैसी होनी चाहिए? ऐलक होने की। और सामने वाला ऐलक हो जाए तो मेरी भावना कैसी होनी चाहिए? मुनि दीक्षा लेने की तैयारी होनी चाहिए। वाह, अरे बहनों को कह रहा हूं, सामने वाली बहन, पड़ोसी बहन यदि ब्रह्मचर्य व्रत लेती है तो हमारी तैयारी होनी चाहिए मैं अर्जी का बन जाऊं। ये भाव तो होते नहीं है। संयम के मामले में हम प्रतियोगिता नहीं करते हैं, विषय भोगों के मामले में हम प्रतियोगिता करते हैं। हाँ, परमात्मा बनने में होड़ लगाओ, फैशन परस्त नहीं बनो, फैशन में होड़ मत लगाओ। ये सब जुआ खेलने के जैसे परिणाम है। ऐसा बहुत विस्तार है, मैं आपको क्या कहूं, बहुत सुंदर विषय है ये, पूरा दिमाग खाली हो जाए, ऐसा लगे आंख बंद करके बैठे हैं, अरे रे हम 7 व्यसनों के सेवन के अलावा कर ही क्या रहे हैं, ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि नहीं? हाँ, पर्यूषण पर्व के दिन हो, सुनना, पर्यूषण पर्व के दिन हो, अष्टानिका के दिन हो, हरी सब्जी छूटे नहीं, खान पान का विवेक आवे नहीं, गरिष्ठ आहार खावे, बादाम का हलवा खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, दूध मलाई पी रहे हैं, एक गरिष्ठ आहार क्या ही है? हाँ, और उल्टा तो अब हम आप लोगों के व्यवहार में पागलपन ज्यादा हो गया।
रोजमर्रा के दैनिक जीवन में सादा भोजन लेते हैं, लेकिन उपवास के दिनों में और हेवी फूड लेते हैं, हेवी खाना। आज उपवास है, हाँ, आज बादाम का हलवा, तो वो अच्छा था कि रेगुलर दिन थे हमारे। उल्टा उपवास के दिन गरिष्ठ आहार अधिक हो रहा है। गरिष्ठ आहार तामसिक आहार में आता है। क्या कहा मैंने? गरिष्ठ आहार तामसिक आहार में आता है, जिससे नींद आएगी, जिससे प्रमाद चढ़ेगा। हाँ, तो जैसे अजगर होता है ना, अजगर सांप, वो मेंढक को निगल जाता है, 4-6 घंटे तक लिपट जाता है पेड़ से, तब कहीं आहार पचता है। सुबह सुबह बढ़िया श्रीखंड और पूरी खावे, पूरन पोड़ी खावे, पूरन पोड़ी महाराष्ट्रियन, आप सबसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, 2-4-6 पूरन पोड़ी खावे, कम से कम 2-3 घंटे तो जोरदार नींद चाहिए ही चाहिए। ऐसे जैसे दारू पिया होवे ऐसा लगे, डोलने लगे ऐसा। बिल्कुल आप विचार करो। हाँ, जिस आहार से प्रमाद का पोषण हो वह आहार मांस भक्षण है। क्या कहा मैंने? ये स्टेटमेंट याद रखना। जिस आहार से प्रमाद का पोषण हो, जिस आहार से देह के प्रति ममता बढ़ती होवे, वह आहार आहार नहीं है, वह मांस भक्षण। मैं तो बहुत सौम्य शब्दों में कह रहा हूं, आप सुमत प्रकाश जी जैसे विद्वानों के मुंह से सुनो, छक्के छूट जाएंगे, हमारे होश उड़ जाएंगे। खान पान में एक आहार नहीं छूटे। हाँ, अरे भाई, त्यागू आहार पानी, औषध विचार अवसर, को टूटे नियम न कोई। बोलो ये है कि नहीं जीवन? संयम में जीवन है कि नहीं बताओ? हाँ, त्याग वैराग्य में जीवन होना चाहिए कि नहीं? तो ये द्रव्य जुआ, भाव जुआ, द्रव्य मांस भक्षण, भाव मांस भक्षण, बहुत सारा इसमें भरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। अब देखिए तीसरा जो है, उस तीसरे के क्रम में हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं देखो आप, बहुत सुंदर प्रकरण है। आज मुझे इस विषय को पूरा ही करना है, आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं विषय को पूरा करके उठूंगा और जितना हो सके उतना समय के अंदर अंदर ही पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। ये हो गया मांस खाने से हानि। भाव मांस भक्षण, देखो देह की मगनता यही मांस भकी बहु। वाह, छड़ाला की पंक्ति यहां ली। द्रव्य मदिरापान, दूसरा मदिरापान है, तीसरा तीसरा व्यसन। शराब, भांग, चरस, गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना। अब यहाँ तो शराब, भांग, चरस, गांजा ये सब लिया, मोह भी तो मदिरा ही है ना। क्या कहा मैंने? देखो आप सभी लोग अभ्यासु हैं, इसलिए मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। मोह भी तो मदिरा है कि नहीं? मोह महामद पियो 6 महीने से, क्या लिखा है कल से? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। मोह को मदिरा कहा है पंडित जी ने छड़ाला में। समय सार में अमृत चंद्राचार्य देव ने मोह को भूत कहा है, भूत। क्या कहा है? हाँ, सतीश कुमार, आपने वो भूत की कहानी सुनाई थी ना बच्चों को, भूत वाली, वो पूरा डोलने लगते हैं। हाँ, ये भूत चढ़ जाता है माथे पे, मोह रूपी भूत, कुछ सूझे नहीं। मदिरापान, मदिरापान। हाँ, इसलिए भाई, अरे कईयों को तो चाय पीने का नशा। गुरुदेव श्री दाखलो નથી આપતા, સવારે સવારે શેર પાસેર જ્યાં સુધી ચા પીવે નહીં એમ નથી બોલતા, શું બોલે? ठूसे नहीं। हाँ, ત્યાં સુધી ભાઈ સાहब ने हाँ हरकी रीतनी बीड़ी पीवे नहीं, 4 हरकी रीतनी बीड़ी पीवे नहीं, ત્યાં સુધી पायखाना में दस्त नहीं उठते। बोलो कैसी आदत होती?
चाय, कॉफी, कईयों को तो कॉफी पिए बिना सिरदर्द कम नहीं हो रही। हाँ, मेरा तो सिरदर्द होता ही नहीं है पहली बात, और होने लगता है हाथ में शास्त्र लेने के बाद सिरदर्द खत्म हो जाता है। नो चाय, नो कॉफी, नो दूध, कोई आदत नहीं। हाँ, हमें तो दिन में 3 बार कॉफी चाहिए। हाँ, तो गुरुदेव श्री लंबी लिस्ट देते हैं। सवारे सवारे नास्तो, वड़ी पाछो, जमवानु खावानु, પછી 4 વાગે उठीने પછી ममरा ममड़ावे, बोलते हैं गुरुदेव श्री। फिर वो ममरा खाते हैं 4 बजे। और पान बीड़ी, पान पान नागरवेल पान नोती बात करी। हाँ, महाराष्ट्र में तो कितना है पान, पान सेंटर कितना है हर गली गली में। पान खाए, पशु खाए पान। हाँ, गुरुदेव श्री कहते हैं ऐसा। कितनी आहार संज्ञा सोचो तो सही आप, ये सब नशा है, ये सब आदत है। हाँ, और ये वाला क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अरे मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पिताजी वो खाते थे, फाकी खाते थे, तमाकू, तमाकू और चूना। चूना अभक्ष है। चूने में मांस भक्षण का दोष है भाई साहब। ये जो है ना, पान पट्टी में जो आता है ना, पान पट्टी में जो चूना आता है, महाअभक्ष है। कौन कहे इस बात को? सांभळो छो बधाए? हाँ, सुनो, सुन रहे हैं बराबर? केवल हाँ मत बोलना, सोचना। चूना महाअभक्ष है। हाँ, हम पान खा रहे हैं जोरदार। क्या खाना क्या नहीं खाना जरा सा भी हमें ध्यान नहीं है। सोचो भाई, सोचो आप, बहुत बहुत सुंदर बातें हैं। चरणान योग की मर्यादाएं समझना, तब ये व्यसन वाला प्रकरण ख्याल में आएगा हम आप लोगों को। हाँ? तो जितने जो भी खान पान आदि के, हाँ, जैसे मोबाइल का नशा, हाँ, टीवी देखने का नशा, सीरियल देखने का नशा, कुछ भी हो जाए, वो खाना टीवी के सामने बैठ के करेंगे, लेकिन सीरियल तो देखेंगे देखेंगे और देखेंगे, एक एपिसोड नहीं जाने देंगे। और अब तो हथेली में आ गए सारे सीरियल तो, अब तो सारे हथेली में आ गए। और क्या, अब टीवी के सामने बैठने की क्या आवश्यकता है? सोचो, ये सब नशा नशा, हाँ, मदिरा पान, इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। सोचना भाई, बहुत सुंदर प्रकरण है। तो मैं आपसे कह रहा था, ये जो मदिरा पान वाली जो बात कर रहे हैं, ये ऐसा ही है। हाँ, नशा करने का, गांजा ये सब हम लेते ना हो, बीड़ी सिगारेट भी नहीं पीते हो, लेकिन न जाने कौन कौन सी बातों का हम आप लोग नशा करते हैं। शराब, भांग, चरस, बराबर, गांजा, ये नशीली वस्तुओं का सेवन करना, बराबर, ये द्रव्य मदिरापान। आगे मदिरापान से हानि क्या क्या होती है, ये द्रव्य मदिरापान। और हाँ, उससे क्या हानि होती है? समाज में बुरा समझा जाता है, ये तो स्वाभाविक है। बुद्धि बुद्धि हित और अहित के विचार से रहित होती। शास्त्रों में तो लिखा है, दारू पिया हुआ, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में ये उदाहरण दिया कि दारू पिया हुआ, मदिरा पान किया हुआ आदमी कभी माँ को माँ भी कहे, पत्नी को पत्नी भी कहे, और पत्नी को कभी माँ कहे, कभी माँ को पत्नी कहे, ऐसा पागलपन होता है। इसलिए हिताहित की विचार शक्ति उसमें नहीं होती है। ये तो द्रव्य मदिरा पान का सारा फल। अब आगे भाव मदिरा पान देखो। मोह की गहल सोआ जन यह सूरा पान, बहुत सुंदर पंक्ति है। मोह की गहलता, मोह की गहलता। गुरुदेव श्री जो कहते हैं ना, अनादि काल थी आ जीवे एक सेकंड पण પોતાના આત્માનું કર્યું नहीं, ये मोह की गहलता है। हाँ, राग रंग विषय कषायोમાં આળોડતો जीव एक सेकंड માટે પણ પોતાનું કર્યું नहीं। हाँ, ये मोह की गहलता, मतलब मिथ्यात्व का जोर, मोह का जोर, मोह के नशे में पड़ा हुआ जीव जो है, भाव मदिरापान, मिथ्यात्व की तीव्रता। हाँ? आत्म स्वरूप से अनजान रहना। ओ क्या कहा, आत्म स्वरूप से अनजान रहना। कल भी मैंने याद किया था,
अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप जान के भगवान बन गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। ये मोह की गहलता है, ये भाव मदिरा है। मैं कौन हूँ ये खबर नहीं होना, हा? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। बोलिए, इसके बारे में कोई सोच नहीं, विचार नहीं, मान मर्यादा का ख्याल नहीं। ऐसी मोह की गहलता वह भाव मदिरापन। चलिए आगे इसको अपन जल्दी निपटा लेते हैं। द्रव्य वेश्यागमन, वेश्या से रमना, नगर नारी आदि का रमना। देखो, संपत्ति पैसा जब होता है अनहद, तब ये सब सूझता है भाई। जैसे पंडित जी साहब ने लिखा है, बहुत बढ़िया, पात्रता के बिना मिली हुई सुविधा पतन का कारण बनती। ये सब कब सूझता है ये सब, हा? ये उसके घर में आना जाना, वेश्यागमन करना, ये तो द्रव्य वेश्यागमन है। अब वेश्यागमन से क्या हानि, समाज में बुरा समझा जाता है, और है भी, समझा ही जाता है, ऐसा नहीं ये सामाजिक रीति नीति के विरुद्ध है। क्या कहा, ये देश नीति के विरुद्ध है, समाज नीति के विरुद्ध है। और आजकल तो वेश्या व्यवहार को तो दूसरे देशों ने तो कानूनी आश्रय दे रखा है। आप सोचो तो सही, किस दुनिया में हम आप लोग जी रहे हैं। मैं अभी देशों के नाम नहीं गिनूं, आप सब जानते हैं, कई देशों ने तो वेश्या व्यवसाय को तो लीगली उसको ग्रांट कर दिया है, लीगली, बस सरकार के कानून के दायरे में है। क्या है, कैसा पागलपन है, सब नरक में जाने के परिणाम है ये। हाँ, समाज में बुरा समझा जाता है, आकुलता होती है, पर भव, पर भव क्या, ये भव तो बिगड़ा ही बिगड़ा, पर भव तो ऐसा बिगड़ा सीधा नरक में अवतार होगा उससे। भाव वेश्यागमन क्या है, देखिए पंक्ति पंडित बनारसीदास जी की, कुमति की रीति गणिका को रस चखिबो। कुमति की रीति, अरे आत्म स्वभाव को छोड़कर विषय कषाय में बुद्धि करना। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर बात है। मतलब आत्मा को नहीं जानना, आत्मा का भान तो होवे नहीं, और विषय कषाय आदि में ही रमे रहना, बुद्धि का उसमें रमना। देखो, धंधा 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 धंधा, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक दिन भर पैसा लेना देना, धंधा व्यापार, राग द्वेष कषाय, ये क्या है, विषय कषाय में बुद्धि का रमना। हाँ? आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, हाँ लिखा है कि नहीं है, तो ये है उम्मती की रीति। रीति मतलब परंपरा, अज्ञान की परंपरा, अज्ञान के संस्कार, कुमति के संस्कार, ये गणिका को रस चखिबो, ये भी भाव वेश्यागमन है। क्या क्या कहना ना। द्रव्य शिकार, देखिए, शिकार शिकार खेलना, बराबर, जंगल में स्वच्छंद फिरने वाले जानवरों एवं छोटे छोटे पक्षियों को निर्दय होकर के किसी भी हथियार से मारना, और मार करके आनंदित होना, ये सच में हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। क्या है ये हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। देखिए, मैं आपको एक द्रव्य शिकार का एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे आजकल मच्छरों का बहुत त्रास है, तकलीफ है, हाँ, तो मच्छरों को मारने की अनेक प्रकार की दवाइयां मिलती है। हाँ, जैसे कुछ दवा ऐसी होती है, उसको लगाओ तो उसकी हवा, जो धुआं जो निकलेगा ना, उससे मच्छर सब मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के नीचे गिर जाते। कुछ दवा तो इतनी भयंकर उन मच्छरों का खात्मा ही बुला देती है। बोलो, ये हिंसा का तांडव है कि नहीं, ये शिकार है कि नहीं, मैं बोल रहा हूं। हाँ, ये शिकार है कि नहीं, शिकार। हाँ, ये भी एक प्रकार का शिकार है। अच्छा, थोड़ी एक और थोड़ी बात करूं, जैसे हम आप लोग मुमुक्षुओं के जीवन में तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़िए, उस रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखा है, सुनना ध्यान से, कि आत्मार्थी मुमुक्षु को हिंसक प्राणी जो होते हैं, जैसे बिल्ली है, वाघ है, इनको हमें पालना नहीं चाहिए, कुत्तों को नहीं पालना चाहिए। अच्छा,
कुत्ता शाकाहारी है कि मांसाहारी है, बोलो तो। प्रकृति से कैसा है वो बताओ। मांसाहारी है कि नहीं? उसके सामने मांस रखो तो खाएगा कि नहीं बताओ? हाँ, तो उसकी संकल्पी हिंसा तो है ही ना मांस खाने की। अब उस कुत्ते को अपन पालते हैं तो मांसाहारी पशु को अपन ने पाला, बिल्ली को पाला, बिल्ली को, बराबर। बिल्ली का आहार क्या है? चूहा खाएगी नहीं बिल्ली? हाँ, अनादिकाल से शत्रुता है। अरे भाई साहब, कि ऐसे पशुओं को पालना ये मांस भक्षण की अनुमोदना है, एक बात। और दूसरी बात, शिकार करने वाले हिंसक प्राणियों की अनुमोदना है। शिकार तो वो कर रहा है, लेकिन शिकार व्यसन की अनुमोदना तू कर रहा है। बोलो, शिकार अपने जीवन में चल रहा है कि नहीं बताओ? हाँ, ऐसा सोचना, हमेशा थोड़ा वर्ल्ड वाइड होकर के सोचना, ऊप मंडूक बनना नहीं, थोड़ा सा बाहर की दुनिया में जाकर के देखना, अनुमोदना, परंपरा देखना हमेशा। अच्छा, एक सिंपल और उदाहरण में दूं अभी। हाँ, जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़े हमारे, डीसी, आजकल शब्द कौन सा बहुत फेमस है? डीसी। व्हाट इज द मीन बाय डीसी? क्या होता है डीसी? ड्राई क्लीनिंग। हाँ, अब ड्राई क्लीनिंग कहां से करके लाए? एलोरा, हमारे यहाँ एलोरा, एलोरा करके एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान है राजकोट में, बहुत फेमस है एलोरा। हाँ, अब 100 रुपया में वो कपड़ा अपन ड्राई क्लीनिंग करके लाए। अब उसने कहाँ कपड़े धोए, कौन सा केमिकल यूज किया, और उससे जो वो पानी बहेगा उसमें जो अनंत जीवों की हिंसा होगी, उस परंपरा का कभी हमने सोचा? तो हमारा पहरवेश पहनना ये भी मर्यादा का होना चाहिए कि नहीं बताओ आप? उसका धोना वगैरह जो क्रिया है उसमें भी शील संयम होना चाहिए कि नहीं बताओ? अन्यथा ये मांस भक्षण आदि सारे व्यसनों की परंपरा उसमें लगेगी। याद रखना आप लोग इस प्रकरण को, बहुत सुंदर प्रकरण है। ये शिकार करने वाली जो बात आई, उस संदर्भ में सहज मुझे, जैसे बिल्ली कुत्ते आदि का पालना, हाँ, और चूहे आदि के घात में उनकी अनुमोदना करना, भाई ये सब व्यसन की परंपरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य शिकार हो गया। आगे, शिकार से हानि क्या होती है? पर के प्रति दया परिणाम नष्ट होता है, और जहां दया के परिणाम नहीं होते हैं वहां आत्मार्पणा कहां से होगा? पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता है। तो ये एक अपेक्षा से देशद्रोह है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ये भी देशद्रोह है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सरकार तो पर्यावरण के लिए न जाने क्या क्या प्रयत्न करती है, और हम इस प्रकार से करते हैं, तो भाई ये बहुत बड़ा अन्याय है। देश राजनीति का उल्लंघन है, राज आज्ञा का उल्लंघन है, भाव शिकार। निर्दय वै प्राण घात करवो यह शिकार। देखो क्या कह रहे हैं, आप थोड़ा सा पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कीजिए, उसमें ये सब आता है। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्ति भवति अहिंसेति संक्षेप। ये जिनागम का ये संक्षेप क्या? हाँ, तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। रागादि भावों की उत्पत्ति का नहीं होना, सबसे पहले अहिंसा की बात की। 44 नंबर का श्लोक है। अप्रादुर्भाव रागादि नाम, रागादि भावों की उत्पत्ति का नहीं होना ये अहिंसा है, और उनकी उत्पत्ति का होना ये हिंसा है। वही बात है इसमें, तीव्र राग वश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना। अब मैं इसके लिए उदाहरण तो क्या दूं? जो भी कषाय के परिणाम हो सकते हैं, जो भी राग के, द्वेष के, कषाय के, अरे जिसमें अपना शील का भंग हो, वाह, जिसमें अपने शील का भंग हो वह कुशील है, वाह, अपने चैतन्य प्राणों का घात जिसमें होवे वह भाव शिकार है। अरे मेरा ज्ञाता दृष्टा परिणाम तो नहीं रहा ना, इसलिए वो भाव शिकार है, ऐसा आप सोचना। द्रव्य पर स्त्री सेवन, पर स्त्री सेवन नाम का व्यसन, उसके बारे में
अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा शेष अन्य किसी भी स्त्री के साथ रमण करना ये द्रव्य पर स्त्री सेवन है। पर स्त्री सेवन से क्या हानि होती है? आकुलता होती है, मन अस्थिर होने से कोई धार्मिक और लौकिक कार्य नहीं हो पाते, ये तो स्वाभाविक। भाव पर स्त्री सेवन क्या है? पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो, दूसरों की बुद्धि की परख में, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं? दूसरों की बुद्धि की परख में, कौन कितना गहरा पानी में है उसकी बुद्धि की कसौटी करना। हाँ, अरे पंडित जी को आता है कि नहीं, उनकी बुद्धि को देखने और सोचने के लिए किसी को टांग खींचना, ये भी पर स्त्री सेवन जैसा महाव्यसन है। अरे भाई, किसी की बुद्धि परखने का हमें अधिकार नहीं है। हम कितना गहरा उतर पाते हैं तत्व में, अरे सच्ची जिज्ञासा हो, आत्म कल्याण की भावना हो तो हमें प्रश्न पूछने चाहिए। तो ज्ञान का सदुपयोग मानना, किसमें? दूसरों की बुद्धि परखने में अपने ज्ञान की पूंजी को सफल मानना, ये भाव पर स्त्री सेवन है। अब देखिए आगे, द्रव्य चोरी, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। प्रमाद से बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण करना, ये द्रव्य चोरी है। ये तो छड़ाला में भी आती है बात, बराबर। चोरी से क्या हानि होती है? हमेशा भय बना रहता है, तनावग्रस्त मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है, अस्थिर चित्त, चित्त भी अस्थिर होता है, कहीं स्थिरता नहीं रह पाती। भाव चोरी क्या है? प्यार सो पराई समझ गही वे को चाह चोरी, प्यार सो, प्यार मतलब मोह, मोह से पर वस्तु से साझेदारी की चाह, मतलब अपनाने का जो भाव है वह भाव चोरी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर वस्तु को देख देख करके पाने की भावना का होना, जैसे रति, रति परिणाम है ना, 9 कर्मों में रति, कुछ अच्छा लगा दिखा, बस ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए। कैसा कैसा, देखो प्रैक्टिकली यह जीव कैसा कैसा परिणाम करता है। हाँ? किसी के पास एक अच्छी सी पेन देखी, जैसे ये मैं कॉलेज में लेके जाता हूँ, तो मुझे कम से कम 20-25 प्रोफेसरों ने पूछा हो कि ये ऐसी वाली पेन कहाँ से मिलती है, क्योंकि अपन लोग इसको मोबाइल के ऊपर स्क्रीन, टच स्क्रीन के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो देखो, किसी के पास कोई अच्छी वस्तु दिखी, तुरंत हमें चाहिए। इस प्रकार के परिणाम वहां कहलाते हैं भाव चोरी। चलिए, अब त्याग का क्रम वाला एक एडिशनल विषय इसमें लिया है। सातों व्यसनों की चर्चा तो पूरी हो गई। प्रथम द्रव्य व्यसन का त्याग। सबसे पहले तो हमें जो क्रियात्मक बाह्य में जो पैसों का लेन देन शर्त रख करके धंधा व्यापार करना, हा? अथवा जुआ, मांस भक्षण आदि जो भी द्रव्य व्यसन के स्वरूप है बाहर के, उनका त्याग होना चाहिए। सम्यक दर्शन की पात्रता बनती है, उससे आत्मज्ञान की सम्यक दर्शन की पात्रता बनती है। फिर भाव व्यसन, आत्म रुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से अपने आप छूटते हैं। देखो, द्रव्य व्यसन को छोड़ा जाता है और अंदर में शुद्धि बढ़ती है, तो भाव व्यसन तो अपने आप छूट जाता है। ये गजब का न्याय है, याद रखना। बुद्धि पूर्वक तो द्रव्य व्यसन को छोड़ा जाता है, और भाव व्यसन जो है भावनात्मक, अंदर संकल्प विकल्प, स्वाध्याय करो, अभ्यास करो, तत्व समझो, अपने आप भाव व्यसन के ऊपर कपात आए बिना नहीं रहेगी, वो छूटेगी 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 और छूटेगी। इस प्रकार से हम आप लोगों ने इन 7 व्यसनों से संबंधित समय की मर्यादा में बहुत सुंदर चर्चा 3 दिन के स्वाध्याय में की है। भाइयों और बहनों, नाटक समय सार आप लोग खोलिएगा, उसमें जो साध्य साधक द्वार में इन 7 व्यसनों के बारे में जो प्रकरण लिखा हुआ है, हम आप लोगों उसको गहराई से पढ़िए और हम आप लोगों की परिणति निर्व्यसनी बने। अब देखो, निर्व्यसन का होना मतलब क्या है? ये 3 दिन का स्वाध्याय यदि आप लोगों ने सुना हो तो आप लोगों को इसकी गंभीरता समझ में आएगी। निर्व्यसनी का होना, इससे क्या तात्पर्य है, कितना गंभीर अर्थ है, हम कितना सिंपल समझते हैं। समझ गए? इसलिए भाई, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, शिकार और चोरी, इनके जो द्रव्य और भाव आदि के पक्ष यहाँ स्पष्ट किए हुए हैं। आप इस प्रकरण को बहुत गहराई से आप सुने,
समझे, सोचे और निर्व्यसनी और निष्पाप होकर के परम पवित्र ज्ञानी धर्मात्माओं जैसा हम आप लोगों का जीवन होवे। शील संयम का हम आप लोग श्रृंगार करें अपने आत्मा को। देखो भाई, पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। शील का पालन होना चाहिए, संयम का पालन होना चाहिए, सदाचार का पालन होना चाहिए। बस इस मार्ग में हम आप लोग पूरे उत्साह के साथ, पूरे आनंद के साथ और बहुत परम पवित्रता के साथ हम आप लोग बढ़े, तो हमारे हृदय में पवित्र जिनवाणी का जो मूल मार्ग है वो हमारे हृदय में दौड़ दौड़ करके आएगा। देखो फिर जीवन कैसा हमारा सुख में, शांति में, निराकुल और आनंद में बनेगा। हम आप सभी का जीवन ऐसा ही परम पवित्र बने, निर्व्यसनी बने, शांत और सुखमय बने, सदाचार और शील में बने। इसी मंगल भावना के साथ मैं इस विषय को यहाँ समाप्त करता हूं। अब कल से हम आप लोग जो परमानंद स्तोत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं वही विषय हम आप लोग कंटिन्यू करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूड़ो। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।